Now let's continue with the question number 16. Correct. What do we have? I equals to integral 1 upon x into x raised to n plus 1 dx. Now if you look at the textbook has given you the hint, because this is a kind of problem where you need to identify first कि किस तरह से हम इसमें substitute कर सकते हैं, and then by go for partial fraction method. So that is why this kind of a question becomes sometimes important, because if we don't have the hint then we have to think in a proper way. Correct. तो कैसे सोचेंगे, तो ध्यान से देखो. What I am going to do is I am going to multiply and divide numerator as well as denominator by x raised to n minus 1. Correct. Into x raised to n plus 1 dx. Now if you observe little bit carefully, तो denominator में देखो आपका plus 1 minus 1 will get cancelled and you will left with x raised to n into x raised to n plus 1 dx. So now I can go for the substitution something like this x raised to n equals to t. So the differentiation will be n x raised to n minus 1 dx equals to dt. So this I have in numerator, so I have to replace that by dt by n divided by t into t plus 1. Already dt आ चुका है, so there is no need of writing it again. And you can take 1 by n common, integral dt divided by t into t plus 1. Now this is the integrand which we are going to solve. क्या है integrand? Simply 1 upon t into t plus 1. Correct. 1 upon t into t plus 1. How we are supposed to solve this? By method of partial fraction. तो a upon t plus b upon t plus 1. a upon t plus b upon t plus 1. Now very simple. Let's call it as equation number 1. Correct. So let me say this is equation number 1 and I will say this is equation number 2. है ना. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो LCM 1 equals to a into t plus 1 and b into t. सिंपल. We know that the LCM में नीचे बेस सेम होंगे, कट हो जाएंगे. Now how can I solve to get the unknowns a and b? तो I can simply go for x equals to 0. Okay, let me change this, not x, it is t. Now this is in terms of t. तो for t equals to 0, तो देखो यहाँ से तो 1 ही रहेगा ये वैल्यू. यहाँ पे a into 0 plus 1 and b into 0. So I got a equals to 1. Very simple. Similarly, you can go for t equals to 1. So this is, sorry, let's say minus 1, because we already have t plus 1. If I take as 0, t will be minus 1. So this side 1 as it is. Minus 1 plus 1, 0 plus b into minus 1. So I will get b equals to minus 1. So I got to know the value of a as well as b. So from equation number 2 क्या मिलेगा? 1 upon t into t plus 1 is equals to a यानी कि 1 upon t, b की वैल्यू minus 1, so minus 1 upon t plus 1. This I will replace over here, है ना. इसकी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे. Now make sure कि t जो है वो x raised to n है. Correct. We have to go for that step also. So integral becomes I equals to 1 upon n, 1 upon t minus 1 upon t plus 1 dt. Now do remember this. I'll show you कि हम क्या करते हैं. इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा. Then we can go for something like this. Correct. फिलहाल यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 upon n, ये log t minus log मॉड्यूलस में t plus 1. This is also in modulus plus c. करेक्ट. सो डेफिनेटली लॉग में सब्ट्रैक्शन है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. करेक्ट. आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट सो दैट वी कैन फिनिश इट ओवर हियर. सिंपल. चलो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 1 अपॉन n log t अपॉन t plus 1 plus c एंड सब्स्टिट्यूट t बैक. क्या रखना है? x raised to n डिवाइडेड बाय x raised to n plus c. करेक्ट. नाउ आई टोल्ड यू कि भाई इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम इतनी सारी मेहनत के बिना शॉर्ट में भी खत्म कर सकते हैं. तो हाउ कैन वी डू इन द शॉर्ट? एज यू कैन ऑब्जर्व हियर t into t plus 1 इज इन डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर में जस्ट ऑब्जर्व दिस. मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए लिख रहा हूँ.
कि न्यूमरेटर में आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो t प्लस 1 माइनस टी। आर यू गेटिंग? है ना, मतलब न्यूमरेटर में 1 है तो हमने सिंपली प्लस और माइनस टी प्रोवाइड कर दिया, जिससे मेरा इजीली टर्म एडजस्ट हो जाएगा एंड रिवर्स एलसीएम करके, यानी कि t प्लस 1 अपॉन दिस माइनस टी अपॉन दिस, इस तरह से। तो यहाँ पे t प्लस 1 कट होके देखो 1 बाई टी, और यहाँ पे टी कट होके 1 अपॉन टी प्लस 1। ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे पहुंचा देगा, है ना। नॉट इवन आई कैन से नॉट दिस वन ओवर हियर, बिकॉज हम तो इंटीग्रल में ही रख रहे हैं ना। तो यहां से डायरेक्टली ये वाला स्टेप आपका आ जाएगा, सिंपली इंटीग्रेट करो, आंसर। इतनी सारी मेहनत कम हो जाएगी। बट इफ यू गो बाय बुक, दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व। बट अगर प्रॉपरली कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हम क्रिएट करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड न्यूमरेटर में ऑलरेडी 1 है, तो इफ आई गिव प्लस और माइनस टी तो मेरी सारी चीजें बैलेंस हो जाती है, एंड दैट्स हाउ वी कैन डू दिस वे, है ना। So it is totally up to you people. If you want, you can go from here to here totally, and there will be no difficulty about that. But if you go like this also, na, still nobody can give you less marks. They have to give you the complete marks because you have used the logic properly. If they are looking to check your method of partial fraction, it is their irresponsibilities कि उन्होंने ये चीज पे ध्यान नहीं दिया. Because this is what we can do very in a simple way. है ना, not necessarily that you are supposed to go for partial fraction and this many steps unnecessarily increased. No need. You can do something like this. Don't worry, you will get what you deserve. That's what I can say. Correct. So this is how we are supposed to solve this kind of questions, and this kind of questions are always important because the substitution in the beginning, multiply and denominator वाला जो किया उससे, and substitution of x raised to n, that makes the problem first important, and then the partial fraction, or you can go something like this. But yeah, maybe you are thinking कि अरे ये तो easy है तो इसी तरह से करें, but this is not something you can achieve in a single or 1 or 2 problems. Correct? वो आपको उसके लिए number of problems practice करने पड़ते हैं, then something like this you can achieve. है ना, you can't be just simply sitting over there and doing this one problem and you can just be confident enough कि हाँ हम ऐसा कुछ आएगा तो सोच लेंगे. Not possible. We need to practice. We need to solve 3-4 more problems जिसमें इस तरह की सोच हमें अप्लाई करनी हो. Correct? We need to give some kind of idea, and then you have something like this in your mind so that you can apply at that particular moment. Otherwise, it will be very difficult. Correct? And when it is difficult, this is the easy way to finish. Correct? सिंपल शॉर्ट में हो जाएगा, बट दिस इज इजी क्योंकि हम पार्शियल फ्रैक्शन पे काम करते हैं, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू द प्रॉब्लम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. सो दैट्स हाउ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. प्लीज नोट इट डाउन प्रॉपरली. नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 17. आई एम गोइंग टू गिव यू सम आइडिया इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. रेस्ट आई विल लीव इट फॉर यू पीपल. So how we are going to solve I equals to integral cos x upon 1 minus sin x into 2 minus sin x. Now by looking at this particular question, can we think of a partial fraction right now? I don't think so. है ना, in the previous problem also हमें सीधे सीधा देख के ऐसा फील नहीं हुआ कि yes we can go for partial fraction. But if you again look at this question very carefully, you can understand that if I take sin x equals to something, यानी कि method of substitution, sin x equals to t, then cos x dx will get balance. Correct? And by doing that, let's see what kind of integrand we get, and then we'll think of the method which will be easy for us to solve. So what I will do, I will say let sin x equals to t, sin x का derivative cos x dx equals to dt. So my new integrand become dt divided by 1 minus t into 2 minus t. अरे ये तो एकदम सिंपल हो गया. Now you do one thing here, take negative common from both. So this becomes t minus 1 into t minus 2. Negative from here t minus 1, negative from here t minus 2. Now both of them are negative, so eventually your term become positive. Two negative will make it positive. Now you know what to do. Am I right? Should I count on you to finish this problem? Simple again. 1 upon t minus 1 into t minus 2. So a upon t minus 1 plus b upon t minus 2. Are you getting me? This is how you can solve. Simple. Or
ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैंने अभी अभी आपको एक मेथड बताई, यू कैन राइट 1 की जगह पे t माइनस 1 माइनस t माइनस 2 डिवाइडेड बाई दिस। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ आई रोट दिस ना, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। क्यों? बिकॉज मुझे पता है ऊपर 1 आना चाहिए। अच्छा, 1 लाने के लिए मुझे पहले तो ये ध्यान रखना है कि 1 पॉजिटिव आना चाहिए। इवन इफ इट इज नेगेटिव स्टिल आई कैन बैलेंस, बट स्टिल लेट्स गो फॉर पॉजिटिव 1। इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स t minus 1 minus t plus 2, t got cancelled, this is giving 1। नीचे तो t minus 1 t minus 2 है। Now you can just simply take this something like this कि भाई t minus 1 upon t minus 1 t minus 2 minus t minus 2 upon t minus 1 into t minus 2. So this 2 get cancelled, this 2 get cancelled. So 1 upon t minus 2 minus 1 upon t minus 1 dt. Now by doing partial fraction, if you go for this, है ना, आपको a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू -1 मिलेगी या समथिंग लाइक दैट, नॉट नेसेसरी। सी आई गॉट t minus 2 here first, so maybe this b is going to be positive and a going to be negative। आप चेक कर सकते हो, do this and get the answer for yourself। yes, once you get in the form of t, इंटीग्रल एक्सपांड कर दिया मींस इंटीग्रल सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, and you get the answer in t। don't forget to substitute t as sin x, because if you forget that you will lost 1 or half marks। यानी कि हाफ या तो 1 है ना, 1 और हाफ में 1.5 मत काउंट करना, आधा या तो 1 मार्क आपका चला जाएगा, एंड दैट कॉस्ट अस वेरी वेरी मच, है ना। हाफ मार्क्स मैटर्स, विल नॉट अलाउ कि हम कैसे भी करके आधा मार्क्स भी कटने दे। सो वंस यू इंटीग्रेट इट, यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ t, एंड देन फ्रॉम t मेक श्योर दैट यू बैक सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t as sin x, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट द आंसर। एम आई क्लियर? आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें इतनी कोई भी डिफिकल्टी होगी टू सॉल्व, करेक्ट। हाँ, ये मेथड के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट्स व्हाट आई कैन टेल, सिंपल। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। अगर किसी का लिखना बाकी रह गया हो तो वो लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, रिवाइंड करके वापस से लिख सकते हैं, करेक्ट। लेट्स सी 18th वन। क्या दिया हुआ है, i इक्वल्स टू इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, सॉरी इट इज गिवन 2, देन डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर? तो कि भाई अगर हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर की डिग्री तो 4 आएगी। अच्छा, व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर? अच्छा, ये भी तो 4 ही आ रही है, यानी कि दिस मे बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मे बी क्या हमारे लिए इम्प्रॉपर ही होता है? हमने कब कहा इम्प्रॉपर होता है? व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x। तो ऐसी सिचुएशन में हम आ जाते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे। बट यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं कुछ आपको बता रहा हूं, यहाँ पे मैं लेट नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, जिससे ये हो जाएगा y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3 एंड y प्लस 4। नाउ लेट मी टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रल। मुझे पहले ना इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल देने दो। सो इसे हम बाहर निकाल देते हैं, लेट्स टेक इट आउट। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। नाउ आई एम टेलिंग पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। आई एम नॉट सब्सटीट्यूटिंग और लेटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो मुझे उसका डिफरेंशिएट सेट करना पड़े, नहीं। आई एम नॉट चेंजिंग माई वेरिएबल, जस्ट कीप पेशेंस। I have convert this into x square equals to y, so this becomes y plus 1, y plus 2, y plus 3 and y plus 4. Correct? Why I did this? Because if it goes into the power of x raised to 4, it will be very difficult for us to divide, because this is improper integral. We have to go for long division method. Am I correct? So यहाँ पे आप इन दोनों को देखो तो क्या आएगा, y square 2y plus 1y यानी कि 3y plus 2, डिनोमिनेटर y square 3 plus 4 7y plus 12. Now I have to factorize this, I have to go for long division method. So numerator में है y square plus 3y plus 2 and here y square plus
7y प्लस 12, डेफिनेटली 1 से ही करेंगे, वी डोंट हैव एनी अनदर ऑप्शन. सो 1 से क्या, तो y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 माइनस माइनस माइनस, दिस टू गेट कैंसल्ड. I got minus 4y minus 10. Are you getting me? है ना? So this particular expression, कौन सा expression? y plus 1 into y plus 2 divided by y plus 3 into y plus 4 can be written as, ये रहा आपका quotient. अब यहाँ पे देखो दोनों नेगेटिव है तो I took negative outside, otherwise मैं प्लस लिखता. minus 4y plus 10 divided by y plus 3 into y plus 4. करेक्ट. ना यू मे बी फीलिंग लाइक के सर अभी ये सब y में आपने रखा तो है लेकिन कहीं सब्स्टिट्यूट के लिए लेट वेट करके dx में कन्वर्ट नहीं किया, एंड देन हाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर फ्रॉम हियर. दैट्स द वैलिड पॉइंट, है ना. लेकिन इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली आई कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज नाउ माई प्रॉपर इंटीग्रल. This is now my proper integral. So what I am going to do is, let me solve this first proper integral by partial fraction, correct, and then we'll see कि हम y की वैल्यू x स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, है ना. Are you getting my point? Let's see the proper integrals partial fraction. इसका partial fraction कर लेते हैं. किसका करना है? 4y plus 10 divided by y plus 3 into y plus 4. Now how can we do the partial fraction of this one? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं बिकॉज इसमें रिप्लेस करना पड़ेगा. ओके, सो पार्शियल फ्रैक्शन नीचे लीनियर ही है ना. सो इट विल बी वेरी सिंपल, a अपॉन y प्लस 3 b अपॉन y प्लस 4. ओके, चलो 4y प्लस 10 a इंटू y प्लस 4 b इंटू y प्लस 3. अब बोल देंगे कि फॉर y इक्वल्स टू -4, ये 0 हो जाएगा. -4 यहाँ रखो तो -4 4 जा 16 और -16 प्लस 10 विल गिव अस -6 इज इक्वल्स टू b. -4 प्लस 3 -1, सो आई गॉट b इक्वल्स टू 6. सिमिलरली फॉर y इक्वल्स टू -3 फॉर दिस वन, है ना. तो ये 0 हो जाएगा. -3, सो 4 3 जा 12, माइनस में 10 के साथ करेंगे तो -2 a, -3 प्लस 4 1, सो आई गॉट a इक्वल्स टू -2. देयरफॉर 4y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 इंटू y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन y प्लस 3 प्लस 6 अपॉन y प्लस 4. और ये कहाँ रख देंगे? इन इक्वेशन नंबर 1. सो फ्रॉम 1 y प्लस 1 y प्लस 2 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 क्या दे रहा है? 1. दिस इज ऑलरेडी नेगेटिव, पे अटेंशन ना, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है. विल पुट दिस वैल्यू लाइक दिस इन द ब्रैकेट. सो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन y प्लस 3 प्लस, नॉट एक्चुअली प्लस माइनस -6 अपॉन y प्लस 4. सो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से यहां तक तो सिंप्लीफाई कर दिया, है ना. कीपिंग x स्क्वायर y. नाउ जस्ट रिप्लेस y की जगह पे वापस से x स्क्वायर. सो दिस बिकम्स x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 -6 upon x square plus 4. Now just simply replace this value, that is the integrand of the given function, in by this value. हमें इसे रिप्लेस करना है. इससे कहाँ पे? यहाँ पे. So I am going to rub this side little bit much portion, है ना, so that we can finish it over here only. Correct? चलो अब यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे the integrand this one with this value. तो देखो प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया ना. 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 -6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4. करेक्ट. अब क्या करना था? हमें सबको सेपरेट करके इंटीग्रेशन दे देना था, बट नेवरदलेस अभी लिखा है तो लिखा है, कोई नहीं. लेट्स से लाइक दिस 1 dx प्लस 2 कॉमन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx 6 कॉमन एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4.
1 का इंटीग्रल x प्लस 2 टाइम्स. Now what will be the integration of x square plus a square? X square plus a square का इंटीग्रेशन क्या था? 1 by a tan inverse x by a. So 2. Here a will be root 3. So 1 by a tan inverse x by a minus 6. Here a will be 2 tan inverse x by a plus c. ऐसे. Correct. Here I can understand the simplification. So 3 2 जा 6 हो रहा है, तो वही एक करना पड़ेगा. बाकी हमारा प्रॉब्लम हो गया x प्लस 2 बाई रूट 3 tan इनवर्स x बाई रूट 3 माइनस 3 टाइम्स tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c. दिस इज अवर आंसर. लेट्स चेक, क्योंकि ऐसे आंसर है ना हमेशा एक बार चेक कर लेने चाहिए. आई नो कि कॉन्फिडेंस इज अ गुड थिंग, बट समटाइम्स कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है. तो या x प्लस 2 बाई रूट 3 tan इनवर्स x बाई 3 माइनस 3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c. Are you getting? So the problems are bit getting hectic, bit little bit difficult होते जा रहे हैं. I can strongly tell you that, correct? But that doesn't mean कि हम नहीं कर सकते. अब ये प्रॉब्लम आप चाहो तो दूसरी तरीके से भी कर सकते हो. What you can do is, आप अपने लिए, आपके लिए मैं बता रहा हूं, तो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई दिस बोथ द टर्म्स इन द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. तो वो x रेज टू 4 में कुछ होगा. गो फॉर द लॉन्ग डिवीजन मेथड इन x रेज टू 4. गो फॉर द लॉन्ग डिवीजन मेथड इन x रेज टू 4. वहां से आपको वो प्रॉपर रैशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वो प्रॉपर रैशनल जो आएगा, करेक्ट, वो प्रॉपर रैशनल जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी दोनों क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4. सो दैट मीन्स यू विल गेट ax प्लस b bx cx प्लस d. 4 अननोन्स. यू हैव टू सॉल्व 4 अननोन्स बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. वो 4 अननोन सॉल्व हो जाएंगे, तब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आप रिप्लेस करोगे इन द प्रॉपर इंटीग्रल वाले में. वहां से जो हमने इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट किया वहां पे. सो दिस स्टेप्स एंड देन यू विल गेट टू रीच ओवर हियर. तब आप इस तरह से इंटीग्रेट ये करोगे. सो एनी हाउ यू कैन डू, आई डोंट माइंड, बट व्हाट आई बिलीव इज के एक्स स्क्वायर इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स अगर लिख के चलेंगे तो हमें यहाँ पे एक तो 4 अननोन ढूंढने पड़ेंगे. विल बी अ ट्रिकी पार्ट. सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड कि भाई एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई ले लो. एक स्टेप वो हमने ऐड किया, उसके सामने हमने 2 अननोन्स रिमूव कर दिए क्योंकि हमने 2 ही ढूंढे, ए और बी. आंसर स्टिल वी गॉट द करेक्ट. दिस इज द सेम आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक. डोंट वरी एट ऑल. आंसर में एक हल्का सा भी चेंज नहीं है. नॉट इवन द साइन और स्क्वायर रूट और नथिंग एट ऑल. दिस इज द आंसर, करेक्ट. बट उससे हमने लॉन्ग डिवीजन सिंपल कर दिया. लॉन्ग डिवीजन सिंपल करने के बाद हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन करना है उसमें 2 अननोन डायरेक्टली रिमूव हो गए. और वो खत्म करने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम सिंपल में वे में खत्म हो रहा है. अगर वो करते ना तो इट विल बिकम वेरी हेक्टिक. स्क्वायर 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 ऐसे मतलब दिमाग घूमने लगता कितने स्क्वायर है ना. तो स्क्वायर कर रहे हैं कि सॉल्व कर रहे हैं वही हमें ज्यादा डिफिकल्टी फील होती. एंड दैट इज व्हाई आई डिड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम लाइक दिस. यू कैन ट्राई सम एग्जाम्पल्स. आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल है विच इज समथिंग लाइक दिस, बट दैट इज प्रॉपर इंटीग्रल. तो उसमें आप ध्यान से देखोगे ना तो यही मेथड फॉलो किए. एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई रख के उन्होंने पूरा सॉल्व किया, करेक्ट. एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट दिस इज मच बेटर रादर देन गोइंग फॉर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड 4 अननोन्स. क्योंकि लॉन्ग डिवीजन तो करना ही है, प्रॉपर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वी विल नॉट एबल टू गेट टू द सॉल्यूशन. आर यू गेटिंग मी? सो प्लीज ऐसे प्रॉब्लम्स को आप 2 बार 3 बार अच्छे से सॉल्व करो सो दैट यू कैन गेट अ गुड कॉन्फिडेंस ऑन इट, है ना. ऐसे प्रॉब्लम्स में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आना चाहिए हमें. देन ओनली वी विल बी एबल टू सॉल्व, करेक्ट. I hope you understood properly, so you can note it down in a good manner. Now let's have a look at question number 19, 20 and 21, but we'll go for them one by one. We are not going to solve all 3 at the same time. So let's have a look at 19th one. If you look at 19th question, I equals to integral 2x upon x square plus 1 x square plus 3 dx. Now why I took this 3 together, because I'm just going to give you the idea how you are supposed to solve this, and you will be solving these 3 questions at your home, correct. So for this particular problem it is easily understand that if I take x square equals to t, if I let, है ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा 2x dx. So in this particular problem we are supposed to let x square equals to t. By x square equals to t, this will give us 2x dx equals to dt.
वेरी सिंपल, करेक्ट। लेकिन यहां तक तो सिंपल है। एज यू प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू कैन अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम आर क्वाड्रेटिक, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, करेक्ट। चलो ऐसा दिख रहा है, लेट्स सी क्या होता है। सो इट बिकम्स i इक्वल्स टू 2x dx विल बिकम dt, x स्क्वायर की जगह पे t, सो दिस बिकम लीनियर, दैट बिकम्स वेरी सिंपल। क्वाड्रेटिक में 4 अननोन थे, यहाँ तो लीनियर हो गया, 2 अननोन आ गया, दैट्स वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या करना है, वही सेम 1/t+1 into t+3, so a/t+1 plus b/t+3 remaining, you know what to do now, correct। क्या करोगे आप, सिंपल से पहले t की वैल्यू -1 then t की वैल्यू -3, you will get the constants a and b, you will replace them in the integrand over here, integrate it, you get it done with it, very simple, there won't be any kind of difficulty, correct। this much what I am trying to show you, ये जो बता रहा हूँ वो इसीलिए because I want you to understand how to start a problem, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको स्टार्टिंग में ना सोचने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि हाउ कैन वी begin with this particular problem, so that is what I am trying to tell you। once somebody starts begin and something like this here they reach, then they know अच्छा ये तो partial fraction है, सटा फटाफट कर लेंगे एकदम। but how to begin, beginning is the most important step, है ना। अगर हमसे सम स्टार्ट ही नहीं होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन तक कब जाएंगे और पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे कैसे, इफ वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट अ प्रॉब्लम। सो फॉर दो स्टूडेंट्स मैं ये बता रहा हूँ जिन्हें ऑलरेडी समझ में आ रहा है व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम बाय लेटिंग और समथिंग लाइक दैट, दे कैन ट्राई बाय देमसेल्फ फर्स्ट एंड देन सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एज हिंट, है ना। डोंट वॉच इट डायरेक्टली कि हाँ ये सर ने हिंट दिया अब कर लेंगे। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर स्टिल फाइंडिंग इट लिटिल बिट डिफिकल्ट टू स्टार्ट, है ना। डोंट कंसिडर फॉर योरसेल्फ, आपके लिए आप आराम से इन्हें ट्राई कर सकते हो। दिस इज जस्ट फॉर दोज हु आर लिटिल बिट लैगिंग इन द बिगिनिंग। नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अच्छा ये कुछ सिमिलर लग रहा है ना, वी डिड टुडे, एम आई राइट। x रेज टू n -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सेम थिंग कैन वी डू ओवर हियर कि इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ x क्यूब, so it becomes something like this, x cube divided by x raised to 4 into x raised to 4 minus 1 dx. So I have to let x raised to 4 equals to t. So 4x cube dx equals to dt. So my integrand become dt by 4 divided by t into t minus 1. Now you know how to solve this. अब तो मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ए बी लिख के भी नहीं दूंगा बिकॉज फ्रॉम हियर यू नो देयर आर टू मेथड्स, करेक्ट। एक आप 4 बाहर ले लो और ऊपर एडजस्ट कर लो, 1 है ऑलरेडी, बट यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इट्स t-1, करेक्ट। सो यू नो हाउ टू डू दैट, यू कैन एडजस्ट इन योर ऑथेंटिक वे और यू कैन गो फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन, करेक्ट। पार्शियल फ्रैक्शन और दूसरे में एडजस्टिंग न्यूमरेटर, और कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमें इजीली वो a और b की वैल्यू मिल जाती है, करेक्ट। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, इफ यू इंप्रूव ना आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। इफ यू अंडरस्टैंड, देखो मैं यहाँ पे t की वैल्यू -1 लेता हूँ, t की वैल्यू -3, द रीजन इज नाउ यू कैन डायरेक्टली फाइंड a एंड b ऑल्सो फॉर द MCQ एंड क्विक वे। आई हैव t+1, है ना। सो एट वन पॉइंट आई एम गोइंग टू टेक t इक्वल्स टू -1, सो इफ आई टेक t इक्वल्स टू -1 आई विल हाइड दिस ओनली। क्या हाइड करूंगा, ये समझना। इफ यू टेक LCM इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, a into t+3 b into t+1। सो इफ यू टेक t equals to -1 दिस विल बी 0, सीधी सी बात है ना। अब ये 0 हो रहा है तो फिर हमें मिलेगा कौन सा कांस्टेंट, a मिलेगा। कब, जब t की वैल्यू -1 होगी तब। तो कैसे फाइंड करेंगे कि भाई a की वैल्यू फाइंड करने के लिए t की वैल्यू -1 है, क्यों, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में है, करेक्ट। सो व्हाट आई विल थिंक, अच्छा चलो t की वैल्यू -1 लेते हैं, इसको ढक देंगे, यहाँ पे -1 रखो, सो -1 + 3 -4, ये -4 a की वैल्यू बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे आएगा, यहाँ तो 1 ही है ना, और वो कहाँ चला जाएगा, इधर। नाउ पे अटेंशन कैसे करेंगे, व्हाट आई टुक t इक्वल्स टू -1, सो हाइड दिस, ये t+1 को हाइड कर दो। अब बचा क्या,
1 upon t plus 3. Put t equals to -1. So 1 upon -1 plus 3. -1 plus 3 is +2. a आपका आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको a मिलेगा 1/2. आई कैन गारंटी यू ये 1/2 ही मिलेगा. करेक्ट. सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड b, उसके डिनोमिनेटर में क्या है? t plus 3. दैट मीन्स t इज गोइंग टू बी -3. हाइड दिस. t plus 3 को छुपा दो. इसे अब t की वैल्यू जो -3 है वो यहां पे रख दो. -3 plus 1 -2. सो दिस बिकम b. b is coming out as -1/2. This is how also you can do, but this is not something you will do in the problem. This is how you can go for MCQ. करेक्ट. जब हम MCQ सॉल्व कर रहे हो तो और पार्शियल फ्रैक्शन आ जाता है, then you can directly find the constant like this, which help you to finish the problem in a little bit quicker way. है ना, थोड़ा स्पीड में खत्म हो जाएगा. अदरवाइज इट टेक्स सो मच अमाउंट ऑफ टाइम कि भाई ये लो x की t की वैल्यू -1 लिखो, -3 लिखो, इधर सब्स्टिट्यूट करो, वो करो, देन यू विल गेट a एंड b. सो इट टेक्स टाइम. सो MCQ के लिए ऐसे आप शॉर्टकट में कर सकते हो. एक मैंने आपको ये एडजस्टिंग न्यूमरेटर भी समझाया कि किस तरह से करना है. सो दिस इज ऑल द थिंग्स यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ. करेक्ट. तो इस तरह से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं. नाउ लेट्स गो फॉर दिस 21. क्या बोला है 21 में कि भाई 1 upon e raised to x minus 1. अब इवन इफ आई लेट समथिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम और वो भी करे तो क्या, हाउ कैन वी अप्रोच फॉर दिस. पहला तो ये क्वेश्चन देख के ना आपको ये स्ट्राइक ही नहीं होगा कि यू हैव टू गो फॉर मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और समथिंग एल्स, क्योंकि अभी एक और मेथड बाकी है. देन थर्ड मेथड एनीहाउ इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल ओवर हियर. बट आउट ऑफ दोस टू मेथड विच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, उनमें से यहाँ कौन सी लग सकती है? दैट इज द डिफिकल्टी टास्क. अच्छा, तो थोड़ा सा ध्यान से सोचे. तो फॉर द बिगिनिंग आई नो कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन आज मैं आपको बता दूंगा तो यू पीपल फील कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ ऐसा करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो क्या करें? तो सिंपल सा काम करना है. लेट e raised to x equals to t. आप सोचोगे सर e raised to x को t लेंगे तो न्यूमरेटर में तो e raised to x है ही नहीं. वेरी वैलिड पॉइंट. अरे एकदम पक्का पॉइंट है ना ये, इसमें गलत क्या है? तो चलो डेरिवेट तो करें. e raised to x dx equals to dt. तो dx equals to dt by e raised to x. अच्छा, e raised to x तो t ही है ना, तो I can write dt by t. So my integral become dx की जगह पे dt by t divided by t minus 1. So it becomes dt divided by t into t minus 1. क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कुछ नहीं. यहाँ बाहर 4 आएगा, इसमें बाहर 1 है. That's the small difference we have. है ना? Are you getting it? That see, मैंने ये 3 प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली आपको आधे आधे ही करके इसीलिए बताया है बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ट्राई फ्रॉम हियर. आप पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़ा अपने तरफ से एफर्ट दो. सेकंड, आई वांट टू गिव यू द आइडिया कि किस तरह से हमें पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्टार्ट करना है. हाउ टू बिगिन विथ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हेन वी सी समथिंग लाइक दिस इन अवर फंक्शन. करेक्ट. सो दैट्स व्हाट आई ट्राइड. है ना? दिस इज I guess end of the exercise, but yeah, definitely there are 1 or 2 MCQs जो हर एक exercise में होते हैं. But what I can say always is कि when you do all the problems of exercise, I don't think so there will be any kind of difficulty to solve MCQs. Those are from the same topic only. Those are again in a similar manner. और मैंने hint वगैरह तो आपको थोड़ी MCQ के लिए दे दी है. Correct. So I guess you people can try MCQ. Generally if some MCQ is bit difficult, so I will definitely solve. But here the 2 MCQs which we have, both of them are very easy. Even the beauty of both the MCQs are both of them are proper rational, so you don't have to bother about it converting into the from improper to proper. It is already proper rational function, so you can just simply go with it. You can try it in a good way. I hope you get the answer. But yeah, what I will suggest के आप लोग comment section में 19, 20 और 21 के आंसर मुझे भेज सकते हो. करेक्ट. कि भाई हमने 19 सॉल्व किया, I got this and I got this. I know it is bit difficult for you to write answers in the comment section, but nevertheless just keep on trying and please अगर आपको सही में सब कुछ समझ में आया हो then press the like button so that I can get the feedback that yes you are getting it. And if you have not subscribed my channel yet, then please do subscribe it so that you can keep updated with the new videos which I am coming every week. Correct. And thank you so much for watching.